we have seen the meaning of demand, components of demand. Today, we are going to study the law of demand, which have two most important concepts, that is expansion of demand and increase and decrease of demand. This is the most important concept from the perspective of 11th standard, for the perspective of those students who wants to be professionals and they are going to appear in CA Foundation or CS Foundation examination, where you will find the same chapter. Even in your higher standards, when you are going through your college studies, you will find also law of demand there. So this is the most important concept from this chapter. Let's take to the next slide. Four important concepts from this topic. The first one, law of demand. Second one, assumption to the law of demand. Third one, expansion and contraction. And last but not the least, exception to the law of demand. Four important concepts, and each concept has its own concept. So look at here. First concept, law of demand. This concept is much connected with expansion and contraction of the demand. Look at the definition. When other factors influencing demand remain unchanged. When other factors influencing demand remain unchanged. कौन से other factor? In the previous chapter, when we have learned about the determinants of demand, we have two determinants, price and other than price. Other than price means taste, preference, substitute, complementary, income, etc. etc. So, when we are talking law of demand, when other factors remaining unchanged means when other factors remaining constant, means there is no change in other factors. Price of a good falls, demand expands. Price of a good rises, demand contracts. What is this expansion and contraction? So let's study on the next slide. Look at here. Law of demand. Law of what? Demand. When other factors influencing demand remain unchanged, if price of good falls, demand expands. Price of a good rises, demand contracts. Here we have graphical presentation along with a tabular form. So look at, we have a price of commodity and units demanded. So look at here, when the price of commodity is 50 rupees. How much? 50 rupees. Units demanded is only 2. So I can write here 2 units and price should be 50 somewhere here. So this is the line exactly. This is the
Now look at, suddenly price falls to 40, demand increase to 4 units. Means जब ये प्राइस 440 हो जाती है, डिमांड अचानक से इंक्रीज होती है 40 में. In the next section, price declines more, demand increases more. Then when it is 20, it's 8. And last but not the least, when it is 10, it is almost the price is 10 rupees. Almost the price is what? 10 rupees. So here, look at the differences. The price at the topmost, the demand is the earliest, and when price is at lowest category, demand is at higher. So when we are taking the middle point B, point A and point C. Look at the scene. When prices are high, high, demand shrinks. Demand what? Shrinks. This is the contraction. This is what? Contraction. On other hand, when prices are low, demand expands. We can see easily in the tabular form, जब भी प्राइस क्या होगी, कम होती जाएगी, डिमांड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. डिमांड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी. ऑन द अदर हैंड, प्राइसेस लो होती जाएगी, प्राइसेस हाई होती जाएगी, डिमांड भी क्या होती जाएगी, लो होती जाएगी. इट शोज इनवर्स रिलेशनशिप. इट शोज व्हाट? इनवर्स रिलेशनशिप. ये कैसी रिलेशनशिप है? इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. बिटवीन व्हाट? प्राइस एंड डिमांड. प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड डिक्रीजेस. प्राइस डिक्रीजेस, demand increases. Once again, 50 units highest price, demand at the lowest point 2, prices as the lowest point 10, demand is the highest point 10 units. So whenever the prices of commodity declines, in absence of any change of other factors, means जो other factors है, हम उनको ये मान के चलते हैं कि वो सारे फैक्टर्स क्या है, अनचेंज्ड है. कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस कुछ भी चेंज नहीं हुआ है. इन हालातों में जब भी प्राइस डिक्लाइन करेगी यानी कम होगी, डिमांड क्या होगी, हाई होगी, लोग और ज्यादा डिमांड करेंगे. इसका जो पहला एस्पेक्ट है वो इनवर्स रिलेशनशिप है. दूसरा जो है शिफ्ट, जो डिमांड लाइन का शिफ्ट है वो लेफ्ट टू राइट है. कैसा है, हम यहाँ पे देख सकते हैं. ये जो शिफ्टिंग है वो ये जो शिफ्टिंग है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट है. ये लेफ्ट से क्या है, राइट में आता है. लास्ट, इमेजिनरी कॉन्सेप्ट. सर अभी तो आपने बोला कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आप अभी बोल रहे हो ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है. ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि हम जब अज्यूम करते हैं कि बाकी के सब फैक्टर अनचेंज्ड है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि सारे फैक्टर्स चेंज ना हो. कोई एक फैक्टर तो अपनी जगह से चेंज होगा ही होगा. तो
इसको हम इमेजिनरी कॉन्सेप्ट कह सकते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट्स में हम जाते हैं और वहाँ पे कंज्यूमर के टेस्ट को, प्रेफरेंसेस को, राइवलरीज को, सब्स्टिट्यूट्स को, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को कंपेयर करते हैं, तो वहाँ पे ये रूल काम नहीं करेगा। और प्रैक्टिकल लाइफ में कहीं ना कहीं जो फैक्टर्स हैं अदर देन प्राइस, उनका बहुत बड़ा रोल होता है डिमांड के एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन में। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला, यहाँ पे डिमांड कॉन्ट्रैक्ट हुई है, डिमांड कम हुई है, और यहाँ पे डिमांड क्या हुई है, एक्सपांड हुई है। एक बार वापस से रूल को क्लियर करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, when other factors influencing demand remain unchanged, if price of a good falls, its demand expands, and if a price of a good rises, demand contracts. यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट है, रिवाइंड द लेक्चर और आप मुझे कॉल कर सकते हो। सो अभी हम चलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है हमारा इंक्रीज इन इनकम एंड प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, जो कि अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है और उसके अजम्पशंस क्या है? तो पहला उसका अजम्पशन है इंक्रीज इन डिमांड रिजल्ट्स ऑफ इंक्रीज इन इनकम। जो डिमांड प्लस माइनस हो रही है, एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उसका एक रीजन क्या है? इंक्रीज इन इनकम है। ये कैसी इनकम है? राइज इन रियल इनकम। राइज इन व्हाट? रियल इनकम है। तो अब रियल इनकम क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है। तो मैंने डेफिनेशन दी है, when income remains unchanged and there is decline in prices of a commodity, real income or purchasing power of a consumer will increase। सर आप तो बहुत कंफ्यूज करते हो, पहले बोलते हो इनकम इंक्रीज होती है, अब आपने बोला कि इनकम तो रिमेन्स अनचेंज्ड होती है। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है उसको पढ़िए, रियल इनकम। क्या लिखा हुआ है? रियल इनकम। यहां पे लिखा है इनकम रिमेन्स अनचेंज्ड एंड डिक्लाइन इन द प्राइसेस ऑफ कमोडिटी। मींस मिस्टर नथुमल, कौन है? नथुमल। नथुमल का जो इनकम है वो 10,000 रुपीज पर मंथ है। कितना है? 10,000 रुपीज पर मंथ। जो पेट्रोल के प्राइसेस है वो 80 रुपीज पर मंथ, और नथुमल पूरे महीने 50 लीटर पेट्रोल यूज करते हैं, यानी 4,000 रुपीज का पेट्रोल क्या करते हैं? यूज करते हैं। यहां में एक चीज समझनी जरूरी है कि नथुलाल का जो सैलरी है उसमें से 4,000 रुपीज सिर्फ पेट्रोल पे एक्सपेंस होता है। इफ सडनली इंडिया में कुवैत जैसे ऑयल फील्ड्स फाइंड हो जाते हैं, मिल जाते हैं, और पेट्रोल प्राइस डिक्लाइन कर जाती है 80 रुपीज से 40 रुपीज पे, नथुमल का यूटिलाइजेशन तो वही रहेगा 50 लीटर। अब कितने हैं? 2,000 रुपए। तो जो नथुमल 10,000 में से 4,000 रुपए पेट्रोल पे कंज्यूम करता था, अब वो नथुमल 10,000 में से कितने रुपए? सिर्फ 2,000 रुपए। यानी यहाँ पे रियल इनकम नथुलाल के परचेजिंग पावर में 2,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ। ये 2,000 रुपीज को क्या कहते हैं? रियल इनकम इंक्रीज। जब भी प्राइस में डिक्लाइन होता है तो रियल इनकम इंक्रीज होती है, जब प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज होती है तो रियल इनकम में डिक्लाइन होता है।
इन दोनों का सीधा इंपैक्ट कंज्यूमर की परचेजिंग पावर पे पड़ता है। समझो इसका इनवर्स सी, अगर ये पेट्रोल 80 रुपए से कहीं 100 रुपए हो गया तो क्या होगा? यस देयर यू आर, यहां पे 5000 रुपए उसको खर्च करने पड़ेंगे। कितने खर्च करने पड़ेंगे? 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। तो 1000 रुपीज एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो गया पर मंथ। तो यहाँ पे नथुमल की परचेजिंग पावर डिक्लाइन हुई है, यानी बोथ ऑफ द सीन्स आर एप्लीकेबल टू द अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड कि अगर प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से इफ देयर इज increase and decrease in the real income of a consumer, it will directly impact on the demand of the commodity। वो commodity की डिमांड पे इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि जहां पे 2000 रियल इनकम इंक्रीज हुई थी, परचेसिंग पावर इंक्रीज हुई थी, नथुमल विल चेज अनदर कमोडिटीज। जहां पे पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से नथुमल की रियल इनकम डिक्लाइन हुई है, Nathumal will shrink his demand of rupees 1000. So it is the clear concept that increase or decrease in real income, income है पर कैसी इनकम है? रियल इनकम है। कैसी इनकम है? रियल इनकम है। दूसरा जो सिचुएशन है वो बहुत ही नॉर्मल सा सिचुएशन है। हमने इस सिचुएशन के बारे में आगे भी डिस्कशन किया था। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट, प्राइस ऑफ व्हाट? सब्स्टिट्यूट। याद आया कुछ? पेप्सिको एंड जोका जोला, हमारा प्रीवियस लेक्चर हमने जेप्सी और जोका कोला की बात करी थी, याद है सबको? कि अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट फ्लक्चुएट होता है, अगर कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है, तो वंस इंक्रीज और डिक्रीज इन प्राइस will effect on another's demand। यानी हम वापस से एग्जांपल लेते हैं। हम आज बात करेंगे, एक हमारे पास है बाईफोन। कौन सा फोन है? बाईफोन है। और एक है हमारे पास सैमसंग। कौन सा है? सैमसंग है। दोनों आइडेंटिकल सेम प्रोडक्ट है, दोनों ही यूजेबल है। हम ये समझते हैं कि बाईफोन की प्राइस में अचानक से डिक्लाइन आता है, इसका सीधा इंपैक्ट कहां पे आएगा? जो सैमसंग की डिमांड होगी वो डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि यहां पे लोग क्या करेंगे? सैमसंग से हटके किसको परचेस करना चाहेंगे? बाईफोन को परचेस करना। If the price of बाईफोन increases, अगर बाईफोन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है तो यहाँ पे सैमसंग की डिमांड इंक्रीज होगी। यानी देखो प्राइस यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रही है और इफेक्ट कहाँ पे निकल के आ रहा है? यहाँ पे निकल के आ रहा है। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट इफेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर? ये हमारे लो ऑफ डिमांड के असम्पशंस थे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मैटर ऑफ स्टडी है वो है एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड में हमारे पास 4 पार्ट है, जिसमें वेवलेंट गुड्स, एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, गिवन गुड्स एंड स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल, जिसके ऊपर डिमांड रूल एप्लीकेबल नहीं होता है। मैंने अभी आपको बोला ना कि डिमांड रूल एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल लाइफ में वो उतना हेल्दी नहीं है जितना वो दिखता है। इन चारों को हम वन बाय वन समझने का ट्राई करते हैं। सॉरी, सबसे पहले है वेलवेट गुड्स। तो ये कौन से गुड्स हैं? प्रेस्टिजियस गुड्स। कौन से गुड्स हैं? प्रेस्टिजियस गुड्स। तो ये प्रेस्टिजियस गुड्स क्या होते हैं? गोल्ड, डायमंड, पर्ल, जो सोसाइटी में
स्टेटस क्रिएशन के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? स्टेटस क्रिएशन के लिए। हाँ भाई मेरे पास ऑडी है, मेरे पास जगुआर है, आई हैव अ डायमंड रिंग, आई हैव अ पर्ल सेट, ये एक सोशल स्टेटस है। इनकी प्राइस जितनी इंक्रीज होगी डिमांड उतनी ही इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए, लोग क्या करेंगे? अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपना इंपैक्ट सोसाइटी में क्रिएट करने के लिए उन गुड्स को परचेज करेंगे। दूसरी है एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स। देखो भाई, एक्सट्रीमली हाई प्राइस, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइस बढ़ जाए डिमांड बढ़ेगी, प्राइस कम होगी डिमांड अपने आप डिक्लाइन हो जाएगी, क्योंकि लोगों के प्रेस्टीज को खतरा है। उसका एडवर्स एक्सट्रीमली लो प्राइस गुड्स, मैच बॉक्स बेचारी पड़ी रहती है पूरे दिन घर में एक बाजू, सुबह शाम 2 टाइम याद आती है जब दिया करना होता है या गैस जलाना होता है। अब इसकी प्राइस चाहे कितनी भी डिक्लाइन हो जाए, चाहे कितनी भी इंक्रीज हो जाए, उसकी डिमांड में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये मैच बॉक्स जो है वो बहुत ही लो प्राइस गुड्स है। जैसे कि स्टेपल पिन्स, बढ़ के उसका कितना पॉइंट बढ़ेगा? 50 पैसे की स्टेपल पिन 50 पैसे की भी नहीं आती होगी, 50 पैसे की स्टेपल पिन में अगर मैं 400% का भी इन्फ्लेशन करूं तो वो गिन के 2 रुपए की होगी, उससे कॉमन मैन की लाइफ में कोई फर्क नहीं आने वाला। तो ये जो एक्सट्रीम लो प्राइस गुड्स है, जैसे कि मैच बॉक्स है, वैक्स कैंडल है, सॉल्ट है, एक्सेट्रा, जो हम रूटीन लाइफ में यूज करते हैं, इसका प्राइस इंक्रीज हो या डिक्रीज हो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद है गिवन गुड्स। उसके बाद क्या है? गिवन गुड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है? इसमें लिखा है सुपीरियर गुड्स replaces inferior goods due to change in price of inferior goods। सर क्या बता रहे हैं आप? सुपीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स। पहले तो सुपीरियर गुड्स क्या है और इंफीरियर गुड्स क्या है उसको समझते हैं। दोनों वर्ड तो आप समझ गए होंगे, सुपीरियर, इंफीरियर, हाई क्वालिटी, लो क्वालिटी। फॉर एन एग्जांपल, हम खाना खाते हैं, हम क्या करते हैं? खाना खाते हैं। हम रोज बाजरे की रोटी खाते हैं। हम बाजरे को इंफीरियर और विट को सुपीरियर गुड्स मान के चलते हैं, क्योंकि जो बाजरी है वो कहीं पे 5 रुपीस पर केजी मिल रही है। कितने रुपीस? 5 रुपीस पर केजी। विट जो है वो 10 रुपीस पर केजी मिल रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम जो बाजरी है उसको इंफीरियर गुड्स कह सकते हैं। सडनली समझो कि ये 5 रुपए किलो वाली बाजरी, 5 रुपए किलो वाली बाजरी 1 रुपए किलो में मिलने लगी। अगर हम रोज की 5 केजी बाजरी यूज करते हैं पूरे फैमिली में, तो 25 रुपए हम यहाँ पे वेस्ट करते थे। कितने रुपए? 25 रुपए। उसकी जगह पे अब हम क्या करेंगे? सिर्फ 5 रुपीस यहाँ पे कंज्यूम करेंगे। तो इन दोनों का हमारा जो डिफरेंस आया वो क्या होगा? 20 रुपीस। अब ये फैमिली क्या करेगी? यहाँ पे जाएगी 2 केजी वीट के लिए। कितने केजी? 2 केजी वीट के। यानी देखो बाजरी का तो कंजप्शन हो ही रहा है, लेकिन बाजरी की प्राइस कम होने की वजह से, कहीं ना कहीं बाजरा की जो प्राइस है वो डिक्लाइन होने की वजह से, वो जो एक्सेसिव इनकम, इसको हम रियल इनकम के सोर्स में फिट नहीं करेंगे, इसको हम इंफीरियर गुड्स ही कहेंगे। ये जो एक्सेसिव इंफीरियर गुड्स का डिफरेंस आया, उसका यूटिलाइजेशन सेम काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कमोडिटी में होगा। कहां पे होगा?
सेम काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ कमोडिटी, यानी कि अगर हम क्रॉप्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, क्रॉप्स की, तो हम बाजरा की जगह पे कहां पे जाएंगे, वीट में चले जाएंगे, हम एप्पल की जगह पे मैंगोज में चले जाएंगे, हम मोटरसाइकिल की जगह पे फोर व्हीलर में चले जाएंगे। जब प्राइसेस डिक्लाइन होती है इंफीरियर गुड्स की, तो सुपीरियर गुड्स की वैल्यूएशन बढ़ती है। ये स्पेशली जो फूड इंपैक्ट होती है उसके लिए है, अदरवाइज बाकी आप सबको इंफीरियर और सुपीरियर का अच्छे से मीनिंग पता चला हो। आई एम बिलीविंग दैट अगर फिर भी आपको पता नहीं चलता है, यू कैन कॉल अस स्पेशल प्रेफरेंस ऑफ पीपल। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई। मैं टी शर्ट पहनूंगा तो जो बड़े से स्टोर में या मॉल में मिलती है, भले ही वो 2000 रुपीज वाली क्यों ना हो, मेरा प्रेफरेंस है भाई। घर पे मूवी देखने की मजा नहीं आती, मैं जाऊंगा थिएटर में, ये बड़े से स्क्रीन में देखूंगा, प्रेफरेंस है, आप इसको बदल नहीं सकते। हमने आगे भी देखा था फैक्टर्स अदर देन जो प्राइसेस थी, उसमें कंज्यूमर का टेस्ट और कंज्यूमर का प्रेफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता था। तो ये चारों एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड के बारे में देखेंगे और उसके साथ साथ हम डिमांड फंक्शन को भी देखेंगे। यानी नेक्स्ट लेक्चर में हम और दो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड एंड डिमांड फंक्शन। थैंक यू वेरी मच, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।